اور خدا یسوع یہ چھت نہ رہے، آگ کا آگ بن جائے، فضاؤں پر روح القدس کا مسا چھوڑ جائے، اور خداوند پوری عبادت کو میرے یسوع، میں پوری عبادت کو تیرے لہو کی بوندوں کے سپرد کرتا، تیرے لہو کی بوندوں کے سپرد کرتا، اور ابلیس کام نہ کرنے پائے۔ میں تیرا شکر کرتا، گہرا مسا، گہرا مسا، گہرا مسا، روح القدس کا مسا، روح القدس کی حضوری، پاک روح القدس کی حضوری، پاک روح القدس کی حضوری کو مانگتے ہیں۔ سب کچھ کرتا ہوں یسوع مسیح کے بزرگ نام سے مانگتے ہیں، آمین، آمین جیسس۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا، آپ سب اپنے کاموں کو چھوڑ دیجئے، اور اب یہ وقت ہم پراپر جو ہے وہ اپنے مسیح خداوند کو دیں گے۔ سو ہر ایک اپنے خداوند کی طرف نگاہ کرے، اور میرے آگے خداوند کا زندہ پاک کلام ہے۔ جب ہم سب مل کر اس کمرے کو مسح کر رہے تھے تو میں نے ایک ریچ ٹائپ انسان کو دیکھا، ریچ ٹائپ۔ کلام مقدس میرے سامنے ہے جو خدا مجھے دکھا رہے تھے، اور اس کے ہاتھوں کو آگ لگنا شروع ہو گئی۔ کلام مقدس میرے آگے ہے، اور میں وہ بات کرتا ہوں جو میرا زندہ خدا روح کی معرفت مجھ تک پہنچاتا ہے۔ وہ شخص پوری اس کی کالے کلر کی کھلڑی تھی بالوں والی، اور اس کو میں نے آگ لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے ہاتھ جل کر اس کی انگلیاں یہاں سے سٹارٹ ہوئی، انگلیاں، پھر آدھی ہتھیلی، پھر ہاتھ، یہ ایسے سٹیپ بائی سٹیپ اس کے پورے جسم کو آگ لگی ہے، اور وہ جسم جھڑنا شروع ہو گیا اس کی باڈی میں سے۔ اور میں یہ بطور آج ایک بہت بڑی خداوند کی یہ شکر گزاری ہے کہ بڑا سچا زندہ کلام ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے۔ اور آج اس خاندان نے تابعداری کی ہے، آج اس خاندان نے کیا کی ہے؟ تابعداری کی ہے۔ آج اس خاندان نے کلام پر کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے۔ آج اس خاندان نے اپنے گھر کا دروازہ یسوع مسیح کے لیے کھولا ہے، اور ابلیس جل کر بھسم ہو کر بھاگ گیا۔ یہ خداوند کی تمجید ہے۔ ہم اپنی عبادت کو شروع کرنے سے پہلے بیٹی سبا سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور یہاں پہ عبادت کو سٹارٹ کرے۔ درانے پرے ہی ہم خداوند کی پرستش بھی کریں گے۔ جی پلیز اس کو لائیو آپ لے سکتے ہیں۔ اوکے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کی قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے، ہماری منسٹری کی طرف سے، خدا کے خادم کی طرف سے سلام۔ جو لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو ہم خداوند کی بادشاہت میں ویلکم کرتے ہیں، خداوند کے جلال میں، جو خداوند اپنے بیٹیوں اور بیٹوں پر نازل فرماتا ہے۔ مبارک ہے ہم کہ خداوند بار بار ہمیں اپنے نزدیک آنے کا موقع عطا کرتا ہے، کیونکہ آج بہت سی جانیں اس کے دیدار کے لیے ترس رہی ہیں، لیکن اس کا رحم اور ترس ہے ہم پر۔ درمیان موجود ہے۔ آج خداوند نے اس گھر میں اپنے سورما کے وسیلہ سے جو معجزہ کیا، اور اس گھرانے نے خداوند یسوع مسیح ناصری کو اور اس کے خادموں کو اپنے گھر میں اتارا، اس بات کی ہم شکر گزار ہیں، کیونکہ وہ شکر گزار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس خاندان نے اپنے یسوع ناصری کو اول درجہ دیا۔ ہاللویہ۔ ہم اس خاندان کے دل و جان سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے منجی یسوع ناصری کو اول درجہ دیا۔ ہاللویہ۔ آئیے سب خادمین اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور اس گھرانے کے لیے دعائے خیر چاہتے ہیں، آمین۔ اور خداوند ان کے گھرانے پر ہمیشہ اپنا رہنا ہاتھ بڑھائے رکھے، ہاللویہ، اور اپنے جلال کو ان تمام زندگیوں میں کرتا رہے۔ پریز گاڈ، پریز شکر گزاری گاڈ، کریں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، پریز گاڈ۔ اپنی منجی یہوہ یری کے نام کو قدوس کہیں گے، کیونکہ جو وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اس کی شکر گزاری کریں گے اس لمحہ، اس گھڑی کے لیے
क्योंकि वो हमारे दरमियान मौजूद है। Hallelujah, Jesus Christ. हम भाई फारिस के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। इस घराने Hallelujah. में खुदावंद यीशु नासरी को वेलकम करेंगे बेशक तू मौजूद है। और जिसके वादा के Hallelujah. मुताबिक हम यहाँ इकट्ठा हुए। Hallelujah. Hallelujah, Jesus Christ. शुक्र Hallelujah. मेहरबान प्यार करने वाले खुदा मैं तेरा दिखा गया शुक्र करता हूँ। Praise God. आज हम सब तेरे हुजूर में सब इकट्ठे होकर खुदा में तुझे पुकारते क्योंकि तू ही वो है, प्रेजी को मांगते हैं खुदा इस तू घर ही के वो लिए, जिंदा खुदा है। इस घर के तमाम रहने वालों के लिए खुदा तेरे पाक उनकी पाक रूह देते हैं तेरे पाक उनकी प्रेज हमेशा यहाँ ठहरी रहे है खुदावन हमें मजबूत कर कि हम तेरे नाम पे इकट्ठे हुए तेरे नाम को ही पुकारे तुझे ही खुदावन अपना जिंदा खुदा मानते तेरे हुजूर में झुके तेरी रहे शुक्रगुजारी करते हैं, है खुदावन हमारे तेरी दिलों को तमजीद मजबूत कर ऐ खुदा हमें मुत्तफिक कर हम मुत्तफिक हो तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदा। हालेलुया जीसस ऐ खुदा मिन्नत करता हूँ मेरी इस छोटी सी दुआ को सुन कबूल कीजिए आपके पवित्र यीशु नाम से मांगता हूँ आमीन जीसस आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और मैं अपने खुदा यीशु मसीह का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आज पाक सब्बत के दिन ढलती शाम मैं अपनी पूरी टीम स्पिरिचुअल क्राइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इस घराने के साथ मुत्फिक होकर तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को और अमल करने वालों को यीशु मसीह के नाम से बड़ी खुशखबरी देता हूं कि जहां पर यीशु मसीह का नाम है वहां पर जिंदगी है। और आज पाक सब्बत के दिन खुदा यीशु आपको मुकम्मल तौर पर आपके घरानों को, आपकी जिंदगियों को, आपके घर के अफरादों को हर एक वबा, हर एक परेशानी, हर एक दुख से रखाई बख्शेंगे। अगर हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करें, 4 अनाजील का मुतालिया करें, तो चारों अनाजीलों में खुदाम यीशु अल मसीह ने जितने भी बड़े मौजज़े किए वो सब्बत के दिन किए। अल्लाह जीसस क्राइस्ट मसीह खुदावंद ने ये एक सीखने वाली बात है कि जितने भी बड़े मौजज़े किए वो सब्बत के दिन किए। और आज सब्बत के दिन ढलती शाम हम सब एक कमरा में मौजूद हैं और जितने देखने वाले खानदान हैं वो अपने अपने घरों के अंदर मौजूद है। यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हुए हैं। यीशु मसीह के नाम से आज पाक सब्बत के दिन हर एक जान यीशु मसीह के नाम से, हर एक वबा, हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक मुसीबत और अबलीस के दमदमों से रहाई पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। जीसस क्राइस्ट। मैं आप सब तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। जितने भी खानदान हमारी ट्रांसमिशन को लाइव देख रहे हैं वो अपने आगे पानी और तेल रख सकते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह की हजूरी, खुदा यीशु मसीह का पाक लहू आपके पानी और तेल के अंदर नाजिल होगा, ठहरेगा उसकी कुदरत के वसीला से। इबादत के बाद आप उस पानी और तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने अंदर यीशु मसीह की गवाही रखेंगे और तमाम लोगों तक उस गवाही को पहुंचाएंगे कि खुदा ने दुराने प्रस्तुश ही आपको शिफा बख्श दी है। आइए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, अपने होंठों को खोलेंगे अपने जिंदा खुदा की प्रस्तुश करने के लिए, अपने जिंदा खुदा की तमजीद करने के लिए, अपने जिंदा खुदा। और प्रस्तुश हमने कहां से करनी है? होंठों से करनी है, दिल से करनी है। कैसे हमने उसकी प्रस्तुश करनी है? क्योंकि खुदा ऐसे प्रस्तारों को ढूंढता है जो रूह। आज हमने रूह से मामूर होकर अपने जहनों को दुनिया की फिक्रों से हटा देना है, अपने जहनों को कोहे कलवरी की तरफ हमने लगाना है, अपनी सोचों को हमने किस तरफ लगाना है? अपने जिंदा खुदा की तरफ। और दिल और जान से पूरी कुव्वत के साथ, वफादारी के साथ हमने अपने खुदावंद की क्या करनी है?
हमद करनी है, सिताइश करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है, जैसे प्रशंसा दाऊद करता था। जब वो खुदा की प्रशंसा करता था तो फिर उसको दुनिया की फिक्र नहीं रहती थी। जब वो अपने जिंदा खुदा की प्रशंसा करता था तो उसको अपने रुतबे की फिक्र नहीं रहती थी कि मैं बादशाह हूं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पर वो रूह से ममूर होकर नाच नाच कर उसकी क्या करता था, प्रस्तुति करता था। वो खुदा के हजूर जब उसके नाम को जलाल देता था तो वो शर्माता नहीं था। सो आज हम अपने मसीह के नाम को जलाल देंगे तो हम शर्माएंगे, अपनी आवाजों को खोलेंगे, अपने दिल से अपने जिंदा खुदा की तमजीद करेंगे और वो हमें 100 गुना फल देगा। आमीन। आइए मेरे साथ मिलकर अपने जिंदा खुदा के नाम को हम जलाल दें। 9 ज़बूर की हम प्रस्तुति करेंगे। Lord Jesus, दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सचया रब, इंसाफ सचया रब। कैसे? सच्चाई नाल होंगे, मुझसे को भी कहेंगे दुनिया का तू करेगा इंसाफ से चला। अपने दस्तानों का इस्तेमाल करें, अपने हाथों का इस्तेमाल करें। इंसाफ से फिर कहेंगे तू करेगा इंसाफ से चला, इंसाफ से चला, सच्चाई नाल होंगे, सच्चाई नाल होंगे, ओ मांगे फैसले सब, सच्चाई नाल होंगे, ओ मांगे फैसले। कायम यहोवा, कायम यहोवा, कायम
जब तुम नजर से होगे तो मांगा सुनाओ गाएं हो मयारा गाएं तख्त तेरा कुछ करेगा खून भी जब ऐलान याद करेगा कुछ करेगा खून भी जब ऐलान याद करेगा ऐलान याद करेगा अरे याद याद गानी अरे याद याद गानी अरे किसी नहीं भूलेगा अरे याद याद गानी अरे किसी नहीं भूलेगा दाईं हो माया दाईं है तख्त तेरा तू बस तेरे आगे तब न है बचाया आमीन जीसस क्राइस्ट हालेलुया जीसस क्राइस्ट सब अपनी आंखें बंद करके खुदा उनके नाम को हम मुबारक कहते जाएंगे यहोवा आप मुबारक है मेरे साथ कहें यहोवा आप मुबारक है यहोवा आप मुबारक है यहोवा पाक खुदा आप मुबारक है यहोवा नसी आप मुबारक है यहोवा रफा आप मुबारक है यहोवा यरी आप मुबारक है यहोवा शाफी आप मुबारक है यहोवा पाक खुदा आप मुबारक है आए अपने खुदा उनको मुबारक कहे अपने हाथ हाल में बाला की तरफ उठा ले क्योंकि मैं आसमान को खुला देख रहा हूं और फरिश्तगानों के हाथ में साज और बरबत में देख रहा हूं हम उसको मुबारक कहते जाएंगे और फरिश्तगान हमारे साथ उसकी प्रशंसा करेंगे हालेलुया जीसस क्राइस्ट यहोवा पाक खुदा अपने मसीह यीशु का नाम लेकर हम आपको मुबारक कहते हैं यहोवा पाक खुदा बंदा पाक रूह की शाहज़ोरियों से नवाजिए यहोवा पाक खुदा कुव्वत से नवाजिए खुदा सब दुआ करे सब दुआ करे सब दुआ करे अपने खुदा उनको मुबारक कहे अपने खुदा उनकी शुक्र गुजारी करे अपने खुदा उनकी तमजीद करे ये सना आल में बाला तक पहुंचे और बहुत सी जाने शिफा पाए हालेलुया जीसस क्राइस्ट हालेलुया मैं गुजारिश करता हूं एल्डर अशरफ से कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करें हालेलुया जीसस क्राइस्ट हालेलुया लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आप दुआया हालत में रहे खुदावंद मुकद्दसीनो आप पर पाक रूहुल कुद्स की गोल्डन रोशनी ठहर रही है अपने आप को मजबूत करे ताकि आप बरकत पाइए यीशु मसीह के नाम से तो जिसमें अल मसीह मबदी हयात आफ्ताब सदाकत हालेलुया शुक्र करते हैं इस बड़ी सलामती के लिए रीबा शिमरा रखा भला चंगा पाया तेरे खुदावन तेरी दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन तू यहाँ पर मौजूद है अपने वादे के मुताबिक तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तामजीद सदा हमारे मुंह से खुदावन निकलती रहे प्यारे खुदा हालेलुया तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा तूने प्यारे खुदा बाप यीशु नासरी इस धरती पर अर्ज़े मुक़द्दस पर प्यारे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट खुदा मुबारक है क़याम बख्शा तेरा शुक्र करते हैं खुदा इस बाप सलामती को बड़ी नहर की तरह जारी और सारी रखना तेरी मिन्नत करता हूँ संभाल हमें अपने मुस्तक़बिल से प्यारे खुदा
बेशक तेरी तमजीद करते, तेरी तमजीद करते, तेरी तमजीद करते, तेरी तमजीद करते, तेरे नाम को मुबारक कहते, तेरे नाम को मुबारक कहते, तेरे नाम को मुबारक कहते रहे। मिन्नत करता हूँ प्यारे खुदा, अपने रूप बकसरत हारे नाज़त चीज़ फरमा करके इस दीदी थी रबर रख री बशर रबर रखा। बख्श देना प्यारे खुदा, एक एक जान तेरे रूह से गरमाई जाए प्यारे खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरी तासीफ हो, तमजीद अब से लेकर हमेशा तक करते रहे खुदावंद। तेरी कदूसियत का साया इस घराने पर हमेशा हमेशा प्यारे खुदावंद ठहरा रहे। तेरे जलाली कदूसों पर हक नाम से मांगते हैं, आमीन। मुकस्सिनो, अभी जब एल्डर अशरफ आप लोगों की शफायत के लिए खुदा के आगे इल्तिजा कर रहे थे, कलाम मुक़द्दस मेरे हाथ में है। खुदा ने मुझे कानों का प्रॉब्लम दिखाया, जितने देखने वाले हैं वो सुने। आपके लिए खुदा नबूवत करवा रहे हैं, आपके लिए प्रोफेसी है, आपके लिए पैगाम है। बहुत से ऐसे खानदान हैं जिनको कानों की प्रॉब्लम है, उसके अंदर जख्म है, फिंसी है कानों के अंदर, सुनाई नहीं देता। आज वो इसी आयल को जब हम इसके लिए दुआ करेंगे, आप अपने कानों के अंदर उसके ड्रॉप्स डालेंगे तो यीशु मसीह के नाम से आप शिफा पा जाएंगे। और आज खुदावंद ताला ने एक और कलाम किया। आपके घराने में छोटे बच्चे अफराद ऐसे हैं जिनकी बॉडी पर गोल दायरे वाले धद्दर हैं, वो अभी अपनी इस नबूवत को, इस प्रोफेसी को रिसीव करें। वो भी जब आयल अपनी बॉडी पर लगाएंगे तो यीशु मसीह के नाम से वो शिफा पाएंगे। खुदा ने यह भी कलाम किया कि यहाँ पर बहुत से ऐसे देखने वाले लोग हैं जो बीमारियों और वबाओं में मुब्तला हैं। आज खुदा यीशु मसीह के नाम से वो भी शिफा पा जाएंगे। आप दुआ पर दुआ कीजिए क्योंकि अभी उसकी खास हजूरी है। आप मांगना शुरू करें क्योंकि खुदावंद आपके लिए भी कलाम करेंगे। आए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने जिंदा खुदावंद की तारीफ करेंगे। और मैं खुदा की खादमा अपनी मिसेस से गुजारिश करता हूं कि वो प्रस्तुश के लिए दुआ करें। खुदा की खादमा से इधर आ जाइए प्लीज। प्रस्तुश के लिए वो दुआ करेंगे। चलिए खड़े होके ताकि शाबाश। प्रस्तुश के लिए रूह कुछ से ममूर होकर आप दुआ करें ताकि खुदावंद का तख्त इस जगह पर लगे। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। ओ शिब्रा रबा रखा। हालेलुया। बेशक खुदा भी यीशु। हालेलुया। आमीन। जीसस क्राइस्ट। आए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करें, आप मांगना शुरू करें। मैं हूं बेफल शजर की तरह, खाली खाली अमर की तरह, फल शजर की तरह, खाली खाली अमर की तरह, मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अमर कहे, मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अमर की तरह, मुश्किलें मेरे चरसू, मुश्किलें यीशु छू मेरे जीवन को छू,
यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। दिलों जा से पुकारूं तुझे, आग रोकी लगा दे मुझे, दिलों जा से पुकारूं तुझे, आग रोकी लगा दे मुझे, मुझ में आ तेरे रंग दूं, मुझ में आ तेरे रंग दूं, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीचों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीचों में आ, मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। जीसस क्राइस्ट। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से अपने लिए शिफा को मांगे। जितने भी देखने वाले हैं जो बीमार हैं वो दिल से अपने लिए खुदावंद से तौबा करें और शिफा मांगे। खुदावंद आपकी बीमारी मुझ पर जाहिर करेंगे और आप जानेंगे कि वाकई खुदा ने आपकी दुआ को सुना है। आइए हम सब मुत्तफिक होकर मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, कोरोना वायरस के लिए और स्पेशली बीमारों के लिए दुआ करें। अजीम खुदा में यीशु में रहम की अपील करता हूं खुदा। हालेलुया जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, खुदा के बर्रे के लहू को मांगते हैं। मुझे पाकिस्तान के लिए, इस घराने के लिए खुदा बंदा तेरा बचाव है। यीशु राजा तू अपने खादम के वसीला से इस घराने में उतरा है। यीशु तू अपने बंदा के वसीला से इस घराने में आया है। अपने बंदा को और ज्यादा प्यार कर, अपने मंसूब को आपका शोला बना दे। हालेलुया। खुदा बंदा मुसीबत के दिनों में तेरी बहुत सी भटकी हुई रूहों को खुदा तेरे सुंदर कदमों में लाए। बहुत सी जाने शिफा पाए, बहुत से लोग बन जाए। और खुदा अपना पूरा भला हाथ रेम कर अपने लोगों के गुजार के सब जिंदगी के शुक्रियत में शफा के सब तेरा शुक्र करते हैं। तू हमारा जिंदा खुदा है। तू अपने बच्चों को तन्हा मायूस नहीं छोड़ता। तेरा जिंदा नाम शुलात। आमीन। खुदा हमने पैगाम दिया आपके बारे में। एक बुजुर्ग बहन है और उसकी एज 40 से अबव है। वो बिस्तर पर है और उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। जितने देखने वाले हैं, जितने सुनने वाले हैं और जितने अमल करने वाले हैं, और वो दर्दों से चूर है वो बहन। और वो खुदा से दुआ कर रही थी कि खुदा आज मेरे लिए कलाम हो। वो बहन अभी अपनी इस गवाही को भेज सकती है। अपना नाम लिख के वो बहन भेज सकती है ताकि मैं उसका नाम लेके दुआ करूं। और अभी राइट नो रूह कुछ की कुदरत के वसीला से 3 मिनट के अंदर वो बेटी शिफा पाएगी। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। हम उस अजीम खुदा की इबादत करते हैं
जो आने वाले भेदों को अपने लोगों पर जाहिर करता है, क्योंकि यीशु से बड़ा कोई चारोगर नहीं है, यीशु से बड़ा कोई शाफी नहीं है, यीशु से बड़ा कोई हादी नहीं है, यीशु से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है, यीशु से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। आए आज अपने दोस्त से तकाजा करे, उसके आगे मिन्नत करे कि हमारे जिस्मों को छू पाक और साफ कर। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। इसको तेज मेरे साथ प्रोसेस करेंगे, कैसे? कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। हाथों का इस्तेमाल करके, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। कहेंगे फिर, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई। किसने जान देकर? तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से यीशु तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। कहे, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। किसने दिखाई? यीशु ने। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हर दम यीशु की तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यीशु की तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। आमीन। कलाम मुक़द्दस के लिए मैं बेटे सलीम से गुजारिश करता हूं कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हालेलुया। कदूस 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 जिंदा गयूर खुदा, कामिल खुदा, अजीम मशीर खुदा, कादर, अब्दीहत के बाप और सलामती के शहजादे, मैं तेरा शुक्र बेहद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरी मौजूदगी के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरे रोब के लिए, तेरी हसमत के लिए, तेरी अल्लाही कुदरत के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदाम आज का कलाम जो खुदाम जितने खानदान लाइफ दे रहे हैं, जितनी बेटियां लाइफ दे रही हैं, जितने खुदाम बुजुर्ग दे रहे हैं, जितने बच्चे दे रहे हैं, जितने खानदान घराने कौमे कबीले देख रही हैं, खुदाम आज के कलाम की कुदरत के बाद तेरा कलाम उनके
खानदानों को, उनकी जिंदगियों को, उनके जिस्मों को, उनके जिस्म के तमाम अज़ाओं को छूकर खुदावन शिफा दे और खुदावन गुनाहों से रिहाई बख्शे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और तेरा कलाम बम बम गुदे गुदे को जुदा कर दिल के ख्यालातों को, अरादों को, अहसासात को साफ दे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और आज के कलाम के बाद बदरूहें, तारीकी की कुव्वतें, अज़दा, इफी, अबलीस, उसकी तमाम शरारत की कुव्वतें तेरे कलाम की कुदरत के बाद उसकी खोपड़ी को तू चीर देना खुदा यीशु से। अपने बेटे यीशु के खून की कुदरत के बाद अपनी चीर देना और तुम्हारा को शिफा देना और तेरे खादिम के लिए सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराज़ी मांगते हैं। और खुदा तू अपने कलाम के दरवाजे और अपने कलाम की कुदरत, अपने खादिम के मुंह बदल खोल देना ताकि खुदा तेरा खादिम रूह की मार्फत कलाम करे। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। मैं पुकारूं इसको ये हर वबा से मुझे बचाए, मेरी तसल्ली मेरी बका है, यीशु का लहू मेरी शिफा, मिलके यीशु का लहू मेरी शिफा है, फिर यीशु का लहू मेरी शिफा, आवाजों को खोल के यीशु का लहू, अभी भी वो मजा नहीं आया, यीशु का लहू, ये बात है, फिर कहेंगे यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम लोगों की ये कहेंगे, तमाम लोगों की ये दुआ है, यीशु का लहू इसका मसीना से जितने भी जाने इस वक्त बीमारी की हालत में आपके हसूर में है, जितने भी जाने इस ट्रांसमिशन को देख रही है, वो सारे लोग आपके लहू के वसीला से शिफा पाए। बचाई उसने हयात मेरी, बनी उसी से है बात मेरी, बचाई उसने हयात मेरी, बनी उसी से है बात मेरी, ये रास्ता मेरी नजात का है, ये रास्ता मेरी नजात का है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम लोगों की ये दुआ है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को कलाम मुक़द्दस के लिए तैयार करें। और मैं गुजारिश करता हूँ बेटे समीर से कि वो दुआ में रहनुमाई करे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, क्योंकि जिंदा खुदा का तख्त यहाँ पर लग चुका, हिम्ब्रा रबरा खबरीबा शिब्रा, उसकी हजूरी यहाँ पर ठहर चुकी। हालेलुया। हमने जब अपने होठों का नजराना उसके हजूर में पेश किया, हालेलुया,
तो वक्त है कि जिंदा खुदा हमसे बात करे, आमीन जीसस, बेशक हमसे बोले, हम सब उसकी आवाज के शिनमा होंगे और उसे दिलो जान से कबूल करेंगे। प्रेज़ गॉड। ऐ जलाल के बादशाह लश्करों के खुदा, इस वक्त हम सब तेरी हजूरी में झुके हैं। बेशक हमारे झुके हुए सर इस बात की अलामत है कि हालेलुया। हम कमजोर हैं, तू जोरावर है, तुझसे कुव्वत, तेरे रूह का मस्सा और तेरा जोर तुझसे चाहते हैं। हालेलुया। और लश्करों के खुदा खासतौर पर तेरे ममसूक और तेरे खादम को तेरी छेदी हुई पसली के मुबारक खून की बूंदों के सुपुर्द करता हूँ, ताकि लश्करों के खुदा तेरा खादम न बोले, बल्कि तेरा पाक रूह तेरे खादम में से होकर आज हमसे बात करे। और लश्करों के खुदा अपने खादम को सिखाने वाला रूह ताकर, और जितने हम बैठे हैं और जितने लाइव सुन रहे हैं उन सब को सीखने वाला रूह ताकर, ताकि लश्करों के खुदा आज के पाक कलाम को हम अपने जहन नशी कर सके और अपने दिल की तख्ती पर लिख कर इसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सके और तुझ में 100 गुना फल ला सके और तुझ में कायम रहे। जो मांगा है बड़े ईमान से पाया है, मांगते यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। और मैं आज अपने बुजुर्ग खुदाए कदूस का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि जो हर एक दिन में हमें मौके फराहम करते हैं कि हम इकट्ठे हों और अपने मसीह खुदावंद के नाम को जलाल दें, क्योंकि इकट्ठा होना भी खुदा की तरफ से है। जब हम उसके हुजूर में हाजिर होते हैं तो ये भी बरकत खुदा की तरफ से है। वो हमारे रास्तों की रुकावटों को खोलते हैं और फिर हम उसके हुजूर में हाजिर होते हैं। तो सबसे पहले खुदा बाप की मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि जो हर रोज हम सबको ये मौके फराहम करते हैं कि हम अपने जिंदा खुदा की प्रस्तश करें, हम अपने जिंदा खुदा के हुजूर अपनी मनाजात गुजारें, हम अपने जिंदा खुदा के हुजूर झुककर अपनी फरियाद खुदा तक पहुंचाए, हम अपने जिंदा खुदा के हुजूर झुककर उसकी तमजीद करें और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो हर रोज हमें कलाम को सुनने का मौका अता फरमा रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरा कुर्राए अर्ज इस वक्त दुखों की लपेट में, हम सब जानते हैं। पूरा कुर्राए अर्ज, ऐसा कोई चप्पा, ऐसा कोई कोना, ऐसा कोई मुल्क या ऐसी कोई सरहद नहीं बची जो इस वक्त गम और दुख में, मुसीबत में, बीमारियों में, वबाओं में, बल्कि मोहलक वबाओं में जो गिरफ्तार ना हुई। तो आज हम सबसे पहले अपने बुजुर्ग आसमानी बाप की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो हर रोज तरह बतरा तरीकों से हमें प्रस्तश के लिए मौका दे रहा है। हम अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करें जो हर रोज तरह बतरा तरीकों से हमें कलाम को सुनने के लिए मौका दे रहा है। बथेरी दुनिया मर गई है पर आज का कलाम वो सुन नहीं पाई। बथेरी दुनिया बीमारियों में मुब्तला है पर वो आज का कलाम सुन ना पाई। बथेरी दुनिया हॉस्पिटलाइज हुई है, बथेरी दुनिया गमों का शिकार हुई है, बथेरी दुनिया कमरों में बंद हुई है और वो तरस रहे हैं कि कैसे हम खुदा की आवाज को सुने, कैसे हम खुदा के हुजूर हाजिर हो, कैसे हमारी आवाज, हमारी दुआ, हमारी इल्तिजा खुदा तक पहुंचे। कब ये मोहलक मर्ज कुर्राए अर्ज से उठाया जाए, कब हम खुशी करें, कब हम उसके हुजूर हाजिर हो, कब चर्चिस के दरवाजे खुले। खुदाया कब हम तेरा पाक कलाम सुनेंगे, खुदाया कब हम तेरी तमजीद और तेरी प्रस्तश खुशी के साथ करेंगे। हर एक दुख में से गुजर रहा है, हर एक गम में से गुजर रहा है, हर एक दूसरे से मिलने के लिए डर रहा है, अपने अपनों से भाग रहे हैं। हर एक शख्स
निजात की तरफ नहीं बल्कि मौत से भाग रहा है। किस तरफ भाग रहा है? मौत से। अपनों से नहीं मिलते, कहीं हम पर यह मूजी मर्ज हमला ना कर दे, हम भी मर न जाए। डरते हैं, कांपते हैं, खौफ खाते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं और अपने दरवाजे को सैनिटाइजर से वो धोते हैं। और सबसे बड़ा सैनिटाइजर इस वक्त दौरे हाजरा में रूहुल कुद्स है। अगर आप रूहुल कुद्स को अपने घर की दरों दीवारों पर, अपने जिस्मों पर मांगेंगे तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। हालेलुया। पर लोग किस तरह भाग रहे हैं? वो मेडिकल स्टोरों की तरफ भाग रहे हैं। वो सैनिटाइजर पावे 2 नंबर चौक के लैंड क्या करते हैं? वो लगाते हैं कि हमने सैनिटाइज कर लिया अपनी बॉडी को, अब हम पर वबा हमला नहीं करेगी, अब वबा हमारे बच्चों पर हमला नहीं करेगी, अब वबा हमारे घर के अंदर नहीं आएगी। पर जो ओरिजिनल सैनिटाइज है वो रूहुल कुद्स की तरफ नहीं जा रहे कि उसको काम करने के लिए मौका दे। रूहुल कुद्स पर जो ईमान रखते हैं, हाथ रखे जाते हैं तो बपतिस्मे होते हैं। क्या वो बच्ची इतनी मुश्किल लैंग्वेज अपने घर से सीख के आई है? ये सीखने वाली बात है। ये मैं भी याद करना चाहूं तो मैं याद नहीं कर सकता, क्योंकि रूह खुद अंदर में से होकर उसकी तमजीद करता है। हालेलुया। तो आज वबा के खौफ से नहीं हमने भागना, असल में आज हमने खुदावंद की मर्जी को जानना है। वबाएं किसने बनाई है? लश्करों के जिंदा खुदा ने। बीमारियां किसने बनाई है? मैं खोल के पढ़वा देता हूं, इस्तिश्ना 28 और 27 बाब पढ़िएगा तो अनु पता लग जाएगा बीमारियां किसने बनाई ने। वो भी खुदा ताला ने बनाई है। जिंदगी देता भी खुदा ताला है और जिंदगी लेता भी खुदा ताला है। सो आज हम किसकी तरफ रजू करेंगे? जिंदगी देने वाले की तरफ। आज हम किस तरफ रजू करेंगे? जो शिफा देता है। आज हम किसकी तरफ रजू करेंगे? जो आफतों के मुंह मोड़ देता है। आज हम किसकी तरफ रजू करेंगे? जो वबाओं को अथाह गड़ा में कैद करने की कुदरत रखता है। हालेलुया जीसस क्राइस्ट। और आज सबसे पहले इन बरकत को, इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए अगर हम पुराने अहदनामे का मुतालिया करते हैं तो खुदा आफतों को, वबाओं को, बीमारियों को, मुसीबतों को, असीरी को अगर अपने लोगों पर ठहराता था तो उन आफतों से निकलने के लिए कभी वो मूसा को खड़ा कर देता था, कभी वो यशवा को खड़ा कर देता था। तरह बतरा तरीकों से वो अपने बंदा को जरूर खड़ा कर देता था जो उनको आफतों से, बुरी खबरों से, बीमारियों से और अबलीस के दमदमों से रिहाई देते थे। पुराने अहदनामा में से अगर हम नहमिया नबी का सहीफा पढ़े, मेरे साथ रहिएगा, नहमिया नबी का सहीफा पढ़े, नहमिया नबी की किताब का अगर हम मुतालिया करें तो वो क्या कर रहा है बड़ी दिलसोजी के साथ। मेरे साथ रहिएगा मेरी बेटियों, मुबारक हो आप जो खुदा की आवाज को सुन रहे हो, मुबारक हो जो आप शिफा याब हो, मुबारक हो आप जो शिफा याब हो कि आप खुदा की आवाज को सुन रहे हैं। बड़े ईमानदार और बड़े मुकद्दस लोग हैं जो कब्रों के अंदर पड़े हैं, वो नहीं आज का दिन देख पाए, वो नहीं आज का कलाम सुन सके, वो नहीं आज खुदा उनको सिजदा कर सके और अपनी अजीम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि बाबा आती है, वो देखती है इनके चुगिरते पाक रूह कुछ का सैनिटाइजर लगा हुआ है, वो भाग जाती है। और पास्टर शराज जब से ये वबा चली है मैं उस कोने में गया हूं, उस गली में गया हूं, उस मोहल्ले में गया हूं जहां पे ये साइन चल रहे हैं, लोगों को ये कोरोना हुआ है, कोई मास्क नहीं है, कोई ये सैनिटाइजर, कोई ग्लव्स नहीं है। मैं हर एक के सर पर हाथ रखकर उनको बरकत देता हूं क्योंकि मेरे चौगिर्द पाक रूह कुछ का सैनिटाइजर है और मेरे वजूद पर ऐसी वैक्सीन है। मेरी बेटियों याद रखिएगा, कैसी वैक्सीन है? ऐसी वैक्सीन है जो कोहे कलवरी पर उसकी मुबारक पसली में से निकली है और वो वैक्सीन यीशु का पाक लहू है। हालेलुया। ना तो ये अल्फाज है, ना ये तसल्ली है, ना ये सब्र है, बल्कि ये तो अमली जामा खुदावन ने करके हमें बता दिया है। जैसे उसको दिल से उसके लहू को मांगते हैं तो जिस्म पर लहू ठहर जाता है।
सो आज हम नहमिया के बारे में जानेंगे कि नहमिया ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा नबी जिसने पूरी गर्दनकश गुमराह कौम को तौबा की तरफ माइल किया। मेरे साथ रहिएगा। नहमिया की जो खिदमत है, उसने सबसे पहले दिल सोजी के साथ दुआ की बनी इस्राइल कौम के लिए, यरूशलेम की फसील को तमीर करने के लिए। वो खुदा के हजूर झुका हुआ है जबकि यरूशलेम उजड़ चुका है, उसकी दीवारें टूट गई है, वीरान हो गया है यरूशलेम। और नहमिया पर खुदा का रूह नाजुल हुआ, रूह से मामूर हुआ नहमिया, और वो खुदा के हजूर झुक कर पहले क्या दुआ करता है कि खुदा मेरे बादशाह के दिल को नरम कर ताकि वो मुझे यहां से रुखसत करे और मैं जाके जो मेरे दिल के अंदर बोझ है मैं यरूशलेम की फसील को क्या करूंगा जी, तमीर करूंगा, यरूशलेम को बहाल करूंगा जो उजड़ चुका है, जो तबाह हो चुका है। मुझे कुव्वत बख्श मेरे खुदा ताकि वहां की गर्दनकश गुमराह कौम को मैं तेरा कलाम सुनाऊं और वो गुमराह कौम तौबा की तरफ रजू करे। नहमिया दिलसोजी के साथ दुआ कर रहा है, रो रो के, आंसू बहा बहा के, दुख में, तकलीफ में, मुसीबतों में रहकर, अपनी जात के लिए नहीं। और पौलुस रसूल ने बड़ा खूबसूरत कलाम किया है, गो के हम कंगाल हैं, गो के हम, पर जिस घर में जाते उस घर को मालदार बना देते। ओह जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। और नहमिया वो पूरी कौम के लिए दुआ कर रहा है, वो पूरी कौम की बहाली के लिए इंतजार कर रहा है। क्या पूरी कौम ने नहमिया को चंदा दिया था? क्या पूरी कौम ने नहमिया नबी को बहुत सी आसाइशें दी हुई थी? वो कहां से चला? बादशाह के हजूर से चला। अंदर उसके क्या बोझ और दर्द था कि मैंने जाके खुदा के घर की तमीर करनी, जो कहर की वजह से, गुस्सा की वजह से खुदा ने उस शहर को तबाह कर दिया है, मैं जाकर दोबारा उसकी तमीर नो का काम करूंगा। और उसने खुदा के हजूर फरियाद की और खुदा ने बादशाह के दिल को नरम किया और नहमिया चला और उसने खुदा के घर की तमीर की और लोगों पर उसने खुदा की मर्जी को जाहिर किया और बहुत से लोगों ने तौबा की तरफ क्या किया? रजू किया। कलाम मुकद्दस में वबाएं, आफतें, दुख, मुसीबतें आती है तो खुदा उसके मुतबादल कोई ना कोई एक वैक्सीन तैयार कर देता है, कलाम की वैक्सीन। और कोई ना कोई खुदावंद एक ऐसा अपना बंदा तैयार कर देता है जो बहाली की तरफ, तौबा की तरफ उस कौम को लेकर आता है। नहमिया के बाद अगर हम यर्मिया की तरफ जाए तो यर्मिया भी नबी है, बुलाया हुआ नबी है। तो उसने दिन रात आंसू बहा बहा के टाट कहीं पे ओढ़ रहा है, कहीं पे वो खुदावंद के आगे इल्तिजाए कर रहा है कि ए बनी इस्राइल कौम लौटा खुदा की तरफ। किसकी तरफ लौटा? यर्मिया। वो फरियाद क्या कर रहे हैं? बनी इस्राइल कौम लौटा खुदा की तरफ, तौबा की तरफ लौटा, तौबा की तरफ रजू कर, खुदा को अपने आप से उन बुरी रवशों को दूर कर दे तो तेरा खुदा तुझसे आफतों और वबाओं को उठा लेगा। पर उसके लिए क्या सबसे जरूरी चीज थी? रजू करना। उसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी? तौबा की तरफ जाना। फिर ताजगी, फिर बरकत, फिर शफा, फिर बहाली आएगी। तरह बतरा नबियों ने गुमराह कौम को तौबा की तरफ क्या किया? माइल किया, खुदा का पैगाम सुनाया। पर क्या हुआ? जब वो लोग मुत्तफिक होकर इल्तिजा करते थे तो खुदा उन वबाओं और आफतों को क्या करते थे? उठा लेते थे। दुरे गाज़ा में मौजूदा दौर में अभी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं कि इब्लीस ने एक ऐसा दमदमा बांधा है, किसी चर्च के लिए नहीं बल्कि पूरे कुर्राए अर्ज के चौगिर्द उसने अपनी रूहानी फौजों को खड़ा कर दिया। किसको खड़ा कर दिया? किसने?
अबलीस ने बिल्कुल चौगिर्द उसने अपने सिपाहियों को खड़ा कर दिया है कि इंसानियत को तबाह बर्बाद और इनको मार डालो। और दौरे हाजरा में आज का जो हमारा मौसर और जिंदा और पाक कलाम है, खुदा ताला नबियों के बाद रसूलों की मार्फत कलाम कर रहे हैं। अभी पहले हमने नबियों के बारे में जानना है। नबी तो आए हैं, उन्होंने हर एक को तौबा की तरफ माइल किया है। जिसने तौबा की उसने खुदा की मार्फत को हासिल कर लिया, और जिसने तौबा ना की मुसीबत शरीर उतरेंदी सदा, वो मुसीबतों में ही रहे हैं। और नबियों के बाद रसूल क्या पैगाम दे रहे हैं। आए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे। अपनी मरकजी आयत की तरफ हम आएंगे जो हमारा टॉपिक है अमाल की किताब, रसूलों का अमाल, अमाल की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत की मैं तिलावत करूंगा। सिर्फ एक आयत की 19वीं आयत की तिलावत करूंगा। जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। इस वक्त जो लोग घरों घरों बैठकर देख रहे हैं वो सारी कलीसिया पादरी शराज की नहीं, वो यीशु मसीह की दुल्हन है। और दुल्हा अपनी दुल्हन से कलाम कर रहा है कि ऐ मेरी दुल्हन अपने आप को पाक कर, ऐ मेरी दुल्हन अपने आप को साफ कर, ऐ मेरी दुल्हन श्रृंगार अपने आप को, ऐ मेरी दुल्हन पाकीज़गी के साथ मेरा इंतजार कर, क्योंकि मैं ही तेरा दूल्हा हूं और मैं आने वाला हूं, बल्कि आ चुका हूं। 19वीं आयत से मैं तिलावत करूंगा। पास तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। एक दफा फिर मैं पढ़ देता हूं। अमाल 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत से मैं तिलावत करूंगा। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। पुराने अहदनामा को हमने जान लिया। हर एक नबी ने जो भी तबलीग की, जो भी उसने खिदमत की है, उसने तौबा की तरफ हर एक शख्स को माइल किया है। जो तौबा कर गया उसने निजात पाली, जो तौबा कर गया उसने शिफा पाली, जो तौबा कर लिया उसने खुदा की मार्फत को हासिल कर लिया और खुदा की हजूरी उन तौबाशुदा लोगों पर ठहरी रही। उसके बाद औरतों में से जो पैदा हुआ, मेरे साथ रहिएगा, औरतों में से जो सबसे बड़ा नबी पैदा हुआ, जो औरत और मर्द के मलाप से पैदा हुआ, वो यूहन्ना नबी, जो मेरे मसीहा से पहले भेजा गया, जिसके बारे में फरिश्ते ने मरियम को पैगाम दिया कि तेरी खालाजाद बहन वो भी क्या है जी, हामला है। और यूहन्ना ने बतौर नबी होते हुए एक तौबा की खिदमत को पूरा किया। और वो तौबा की खिदमत उसकी कौन सी थी बताइए? पानी का बपतिस्मा। हालेलुया, ये बहुत सीखने वाली बात है। हर एक नबी तरह बतरा तरीकों से अपनी खिदमत को पूरा कर रहा है। और जो यूहन्ना आखिरी नबी है मसीह खुदावंद से पहले, वो अपनी खिदमत को कैसे पूरा कर रहा है? लोगों को गुस्ल दे के, वो भी तो तौबा की तरफ लोगों को माइल कर रहा है। कहीं पे कह रहा है ए सांप के बच्चों। और जो पानी का बपतिस्मा ले लेता था वो क्या, निजात पा जाता था। और उसके बाद हमारे मसीह खुदावंद ने तौबा की तरफ बहुत अफरादों को माइल किया। और जब हमारे खुदा यीशु हमसे जुदा हो गए तो यह खिदमत रसूलों को सौंपी गई। और रसूल पतरस रसूल क्या फरमाते हैं? पस तौबा करो। पस का मतलब है रुक जाना, कोई माफी नहीं। पस का मतलब है कि खबरदार। पस का मतलब क्या है? इसके बाद गुंजाइश कोई नहीं है। पस तौबा करो। वो ललकार कर कह रहा है खुदा का रसूल कि अगर तुमने मार्फत को हासिल करना है तो सबसे पहले क्या करना है?
तौबा करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में खुशियां आए तो सबसे पहले क्या करनी है? तौबा करनी है। अगर आप चाहते हैं कि ये वबा रूए जमीन से उठाई जाए तो सबसे पहले क्या करनी है? तौबा करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाह मिटाए जाए तो सबसे पहले क्या करनी है? तौबा करनी है। और पतरस, जिसको खुदा में यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, ये बात खून और गोश्त ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। तो पतरसी रूहुल कुछ से ममूर होकर क्या कह रहा है कि बरकत को हासिल करने से पहले हमने तौबा करनी है। एक बेटी की मुझे कॉल आई, वो बेटी देख भी रही होगी, कहते जी पास्टर साहब मेरा शोहर तो सर पर बाइबल रख के कसम खा लेता है जी मेरी तौबा हो, मैं शराब नहीं पीनी। तो 2 दिन गुजरते हैं, तीसरे दिन वो फिर शराब पीना शुरू हो जाता है। हमारे घर में पादरी साहब बेसुकूनी है, हमारे घर में खुशी नहीं है। पादरी साहब हमारे लिए दुआ करे ताकि आसमान हमारे लिए खुले। तो ऐसे बहुत से अफराद, ऐसे बहुत से खानदान हैं जो तौबा होंठों से करते हैं, दिल से तौबा नहीं करते। उनके ऊपर हमेशा काहत, तंगी, मुसीबत, दुख, बीमारी ठहरी रहनी है। और जो दिल से तौबा करते हैं, दिल से तौबा करते हैं, दिल से तौबा हमने कैसे करनी है? सबसे पहले हमने अपनी जिंदगियों में से हर बुरे अनासर को निकाल देना है, गुरूर को निकालना है, तकब्बर को निकालना है, झूठ को निकालना है, एक दूसरे से जलने वाली बदरू स्पिरिट्स को निकालना है, एक दूसरे पर उंगलियां उठाने वाली स्पिरिट्स को हमने निकालना है। फिर क्या होगा? हम खुदा की तरफ रुजू करेंगे। पहले तौबा कर ली, फिर रजू हुआ, और आसमान का खुदा जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो आपको जानता है और वो आपसे वबाओं को क्या करेगा? दूर कर देगा। आज भी ये कोरोना वबा जो है ये बेसिकली एक इम्तिहान है। दाऊद रोल को सममूर होकर क्या कहते हैं? बस याद रखो कि खुदा ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा। आज वक्त है, वही शिफा पाएगा जो तौबा शुदा होगा। आज वही शिफा पाएगा जो खुदा की तरफ रुजू करता है, जो दिन रात उसके लिए तड़पता रहता है कि कैसे मैं खुदा की मार्फत को हासिल करूं, कैसे मैं खुदा को खुश करूं ताकि मेरे गुनाह मिटाए जाए, माफ किए जाए। और फिर खुदा के हुजूर से कौन से दिन आएंगे जी? ताजगी के दिन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। वही जिंदा खुदा है जो बसीदा हड्डियों को ताजगी देता है। औलाद जीसस क्राइस्ट वही जिंदा खुदा है जो बांझ के घर को बसाता है। ज़बूर 113 उसकी नामियात में लिखा है, वो बांझ के घर को बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर। पर कैसे? जो आगे लिखा है, खुदावंद की हमद करो। जो रजू करेगा, खुदा की हमद वही करता है जो तौबा शुदा होता है। और बांझ का घर उसी वक्त बसता है जब खुदा की तरफ रजू करते हैं। फिर औलाद ताजगी के तौर पर इनाम मिलती है। खुदा के हुजूर से क्या आती है? दिन आते हैं, क्योंकि वो मुर्दा जानों को सेहतयाब करने की कुदरत रखता है। वो वीरान को आबाद करने की कुदरत रखता है। वो उजड़े हुओं को बसाने की कुदरत रखता है। सो अजीजों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, आज हमने अगर आप रूह में ममूर होकर, अभी घुटनों के बल होकर सबसे पहले सच्चे तौर से कहेंगे ना कि खुदा में यीशु आज मैं तौबा करती हूं, मैं तेरे खिलाफ कभी गुनाह नहीं करूंगी। खुदावंद मैं कभी गंदी सोचों की तरफ नहीं जाऊंगी। खुदावंद मैं रोजे रखूंगी। खुदावंद मैं तेरी मार्फत, तेरी मसलिहत को जानना चाहती हूँ। खुदावंद मैं तेरी मर्जी को जानना चाहती हूँ। तो बेटियों, आपके दरवाजे पर खुदा का पाक फरिश्ता 16 जन तलवार के साथ खड़ा होगा। आपके घर के अंदर कभी बीमारी नहीं आएगी। जो बेटे हैं वो सबसे पहले अपनी आंख को साफ करें। हर दफा मेरा ये साइन है, क्योंकि मैं जवान हूं और मैं ये चाहता हूं कि मुझे उसने भेजा ही जवान लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए। मैं भी इस दुनिया का ही हिस्सा था। खुदा ने कहा, बदन का चिराग, अगर तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन। अपनी आंख को साफ करें। आप अपनी आंख के अंदर हया को पैदा करें।
दूसरों की बहू बेटियों को देखने से पहले अपने घर पर देखें, कि जब आप किसी को गंदी नजर से देखेंगे तो फिर आपका जिस्म गंदा हो जाएगा, फिर कैसे दुआ आप पर लगेगी, आप पर लानत ही आनी है, बरकतें नहीं ठहरेगी। सो खुदावंद आज तकाजा करते हैं कि मैं ताजगी के दिनों को आपके लिए दोबारा भेजना चाहता हूं, मैं तुम्हें दोबारा खड़ा करना चाहता हूं। ऐ गर्दनकश गुमराह कौम, मेरी तरफ से मेरे हजूर से शराब को दूर कर दे, अपने परमटों को फाड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, एक दूसरे पर गंदी नजरें रखना छोड़ दो। जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है वो सबसे ज्यादा अफजल है, क्योंकि वो कहता है जिनको मैंने जोड़ दिया है उन्हें आदमी जुदा, तो फिर उसको काम करने दे कि तू हमें बहाल कर, तू हमें जोड़, ताकि कोई भी हमें फाड़ ना सके। आज हमने दिलो जार रूह से अपने जिंदा खुदा की क्या करनी है, तौबा करनी है, उसकी तरफ रजू करना है, ताकि खुदा आपके गुनाहों को मिटाए, क्योंकि गुनाहों को माफ करने की कुदरत एक ही है, वो यस्सु नाम है, उसका फक्त नाम ईमान से ले जाए तो हम शिफा पा जाते हैं। कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने जिंदा खुदावंद की कलाम मुकद्दस के लिए हम शुक्रगुजारी करेंगे। और प्यारे बेटे साजिद से गुजारिश है कि वो आए और कलाम मुकद्दस के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें। हालेलुया। हो रबारा खबर रीबा शुब्र रबारा खबर रीबा रबा राज़िका। कदूस लश्करों के खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, ऐ खुदावंद जिंदगी भर कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। तूने ऐ खुदावंद वो रोटी हमें मुहैया की, बेशक खुदा, हम सैर हो गए। हालेलुया। इस वक्त और घड़ी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया। ऐ खुदावंद तो अपने वादों में सच्चा है। ऐ खुदावंद तूने अपने खादिम को भेजा और इस घर की सलामती के लिए खुदावंद तुझसे इंतजार करते हैं। इस तेरे खादिम का तलवा इस खुदावंद इस घर को बहाल कर दे। खुदावंद इस घर की तमाम बुरी तासीरों को हालेलुया जीसस क्राइस्ट तेरे नाम से डांटते और बांधते और हुक्म देते हैं कि खुदावंद इसी वक्त इस घर से निकल जाए। और ऐ खुदावंद तमाम लोगों को, ऐ खुदावंद जो इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, हालेलुया, खुदावंद सुन रहे हैं, बरकत की इल्तिजा करते हैं। बेशक खुदा यीशु, आटे नमक तेल पानी की तमाम कसरतें हैं खुदावंद, जो कमियां हैं खुदावंद उनको पूरा कर दे। बेशक खुदावंद अपने तमाम हाजिर जमात को खुदावंद तेरे हाथों में दे। बेशक खुदावंद जिंदगी भर कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आमीन। आए हम सब मुक़द्दसीन स्पिरिचुअल क्राइस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बेटियां, स्पिरिचुअल क्राइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बेटे अपनी आंखों को बंद करें और खुदा रूहुल कुद्स की कुदरत से इनकी आंखों को रोशन करे। और आपको बहुत सी जगहों पर पानी और तेल रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से पड़ा नजर आएगा। जो लोग ट्रांसमिशन के दौरान अपने आगे बड़े ईमान के साथ रख चुके हैं, आए सब मुत्फिक होकर उस पानी और तेल को मस्सा करें यीशु मसीह के नाम से। जितने भी बीमार इस पानी और तेल का इस्तेमाल करें, रूहुल कुद्स की कुदरत से वो बीमार शिफा पा जाए। यीशु जी, मैं पानी के अंदर आपके पाक लहू को मांगता हूँ यीशु, जहां जहां पर भी लोगों ने बड़े ईमान के साथ पानी रखा हुआ है, खुदावंद उस पानी के अंदर मैं आपके पाक लहू को, खुदावंद यीशु मैं तेरे पाक लहू को मांगता हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह से जहां पर भी तेल रखा गया, तेल तेल न रहे मेरे खुदावंद यीशु, वो आपका पाक लहू बन जाए खुदावंद यीशु मसीह से। जितने भी लोग पानी और तेल का इस्तेमाल करे, रूहुल कुद्स की कुदरत से यीशु मसीह के नाम से वो शिफा पाए। बेशक खुदा तूने हमारी दुआ को सुन लिया, कबूल किया है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिए। जितने बीमार हैं आज हम उन तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद आज अपनी रहमत के वसीला से इन तमाम लोगों को शिफा बख्शेंगे। सबसे पहले हम बेटी रूथ हैरिसन के लिए दुआ करेंगे कि खुदा इसको बेटे की बरकत से नवाजे। खुदावंद सब मिलकर बेटी रूथ हैरिसन का नाम लेकर दुआ करेंगे। और जितने इस वक्त इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं वो भी बेटी रूथ के लिए दुआ करे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है यकूब के खत में एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ। आए मुत्फिक होकर बेटी रूथ के लिए दुआ करे कि खुदावंद इस बेटी को बेटे की बरकत से नवाजे और ये बेटी यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए स्पिरिचुअल क्राइस्ट की इबादत में अपना बेटा उठा कर लेकर आएगी यीशु मसीह के नाम से।
अजीम खुदा में यीशु मसीह नासी बेटी रूथ को मैं तेरे पाक लहू की बूंदों के सपुर्द करता हूं। खुदा में यीशु मसीह नासी प्यारी बेटी रूथ को बेटे की बरकत से नवाजिए और इसका नाम डैनियल होगा। खुदा में यीशु मसीह नासी फरमाते हैं ओ रबा रकबा रीबा शिमरा रबा रकबा रीबा रबा रखा रकबा 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 रीबा रबा रकबा रबा राजिका में शकर लाशिका में शकर संथोर रबा रा रा बी रबा रका हिम्रा रबा रकबा रीबा रबा रका फीर रबा रकबा रबा राजिका रहम खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। और खुदा जल्द अपनी बेटी को बहुत बड़ी गवाही के साथ अपने हजूर में लेकर आए। दाऊद नबी की तरह नाचती हुई आए, डैनियल को लेकर आए। ये वही डैनियल है जिसके लिए तू शेरों की मांद में उतर आया और आज इस बेटी को बेटे की बरकत से नवाजता कि ये जाने हमारा खुदा जिंदा है, जिसकी आंखें हर जगह पर लगी है। वो कमरे में भी बैठकर अपने लोगों के लिए बरकत को सादर फरमाता है। आए हम सब दुआ करें बेटी शमीम अख्तर के लिए जिनको शुगर और दिल की बीमारी है। मेहरबान खुदा यीशु मसीह नासी प्यारी बेटी शमीम अख्तर को मैं आपके पाक लहू की बूंदों के सपुर्द करता हूं। अपनी बंदी को शुगर और दिल की बीमारियों से रखाई बख्शिए। खुदा यीशु अपनी बंदी को मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्ती और सेहत याबी बख्शिए। आए बेटी साइमा असगर के लिए दुआ करे। खुदा यीशु मसीह नासी मैं मिन्नत करता हूं बेटी साइमा असगर को औलाद जैसी नेमत से नवाजिए, इसको भी बेटे की बरकत से नवाजिए और खुदावन इस बेटी को अपनी गवाही के लिए तैयार कीजिए। आए हम दुआ करें बेटी अनीता जिशान के लिए और उसके घराने के लिए। मेहरबान खुदा यीशु मसीह नासी प्यारी बेटी अनीता जिशान को इसके पूरे घराने को मैं आपके पाक लहू की बूंदों के सपुर्द करता हूं। खुदा यीशु इस घराने को अबलीसी कुफ्तों नपाक हो और तबाहियों बर्बादियों लड़ाई झगड़ों गुर्बत की लानतों और कर्जों की लानतों से बचाकर महफूज रखिए और खुदा हर एक वबा से इनको बचाकर महफूज रखिए। आए हम दुआ करें बेटे दाइम के लिए जो गुजरावाला से है, उसको खून की कमी है, उसके लिए दुआ करें। अजीम खुदा में यीशु मसीह नासरी प्यारे बेटे दाइम को मैं आपके पाक लहू की बूंदों के सपुर्द करता हूं। खुदा में बेटे दाइम की नसों के अंदर रगों के अंदर मैं आपके जलाली सलीबी लहू की धारा को मांगता हूं। मैं आपके आगे फरियाद करता हूं बेटी अनमोल की कारोबार के लिए, उसके जॉब के लिए खुदा यीशु मसीह नासरी में मिन्नत करता हूं अनमोल को अच्छे रोजगार से नवाजिए, उसका कारोबार पूरे पूरे खुले यीशु मसीह के नाम से। आए हम दुआ करें आसम प्रदेश के लिए, औलाद के लिए। अजीम खुदा यीशु मसीह नासरी में मिन्नत करता हूं प्यारे बेटे आसम प्रदेश को, इसकी अहलिया को तेरे हुजूर में रखता हूं। खुदा इनका रहम खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। तूने मुझे फूल दिखा दिया और मैं ईमान करता हूं इन 3 बार के अंदर ये बेटी अपना हालेलुया जीसस हमारी दुआओं को सुना और बेटे आसम जो इसी टाइम पर उनको खड़ा कर ताकि ये पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक जाकर तेरे नाम की गवाही दे। क्योंकि तू कलाम करता है और तेरा कलाम बेतसीर नहीं है, जो भी तेरी तरफ शुरू करते हैं वो निजात है। जीसस क्राइस्ट। आए बेटे अमीर भट्टी के लिए दुआ करे, हाथों की एलर्जी के लिए। मेहरबान खुदा यीशु मेरे बेटे अमीर भट्टी को मैं तेरी बात करूंगी करता उसके हाथ साफ हो जाए, जैसे ये तेल इस्तेमाल करे इसके हाथ इस एलर्जी से साफ हो जाए। मेहरबान खुदा यीशु जितने भी लोग इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, जितने भी खानदान स्पिरिचुअल क्राइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा देखने वालों को, सुनने वालों को, अमल करने वालों को, जो जो अपने घरों में बैठे हैं, अभी पाक रूह उसकी गहरी हजूरी उनके ऊपर नाज़िल हो। खुदा उनके घरों को आफतों वबाओं बुरी खबरों और दवाइयों से बचाकर महफूज रखना और खुदा जल्द मुल्क पाकिस्तान को कोरोना वायरस जैसे बुरे बंद से रहाई बख्शना, ताकि पहले की तरह हम तेरे हजूर में आकर तेरी तमशीर कर सकें। मेहरबान खुदा यीशु मैं अपनी बेटी बुशरा को, इस घर की मालकिन को, इस बेटी के शोहर को, इसके बेटों को, इसकी बेटियों को और इस घर की दरों दीवारों दरवाजों चौखटों छतों को खुदा को, क्योंकि खुदा तू तो यहाँ पे उतर आया, जो पहले से नहा चुका है उसको नहाने की जरूरत नहीं है। तूने इस घर पर अपनी रहमतों को नाज़िल फरमा और आज इस घर के वसीला से बहुत से लोगों ने खुदा जिंदगी बख्श कलाम सुना, बहुत से लोगों ने शिफा को हासिल किया, बहुत से लोगों ने तौबा की तरफ रुजू किया, बहुत से लोगों ने अपने अंदर एहद रखा कि हम अब खत्म, अब मसीह हम में जिंदा। खुदा यीशु इस घराने को ढेरों बरकतों से नवाजिए। यीशु नासी मैं अपने आप को तेरे हुजूर में रखता हूँ खुदा,
खुदावन मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि काहिन का बेअब रहना बहुत जरूरी है। ऐ खुदावन मुझे कुव्वत बख्श, और मैं जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनके आगे मिन्नत करता हूँ, मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे आजमाइशों में से निकाले। मैं मिन्नत करता हूँ आप सब लोगों से, स्पिरिचुअल क्राइस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बहाली के लिए दुआ करें कि खुदा इस ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया की इंतहा तक लेकर जाए। बहुत सी जाने शहर और अनसुदा हो, बहुत सी जाने मसीह के करीब आ जाए। मेरे बुजुर्ग खुदा खिदमत के दरवाजों को खोल, और खुदा यीशु मसीह से जल्द इबादत खानों के दरवाजों को खोल, ताकि तेरे मंजूर में आकर खुदा वो रो रो के मैं तेरी शुक्रगुजारी करके तेरी तमजीद करूं। हमसे गुनाह हुए तो हमसे खफा है, हमें मुआफ कर दे खुदा यीशु। सब पहले जैसा कर दे, क्योंकि जो फ्रूट तो मुझे बेइंतहा दिखा रहा है, कभी भी अंगूर के गुच्छे और कभी भी खुदावंद सेब है। खुदावंद ये तेरी नेमतें हैं, रूह कुछ ये फल है कि तू दिखा रहा है कि मैंने दुआओं को सुना है, तुम्हारी दुआओं को फल साबित किया है। खुदावंद चल कर ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। इमारत ना खुदावंद, मैंने जो कुछ मांगा आपने अता किया। सब नामों से अफजल नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें सिखाया, ऐ खुदाए बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज मिले, और जिस तरह हम अपने कर्ज को मुआफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज में मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तेरे बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरूपी ताकत और शराकत अब से लेकर दुनिया भर के कुल ईमानदारों, खुसूसन स्पिरिचुअल क्राइस्ट ऑर्गेनाइजेशन और बाजी बुशरा, इसके शोहर और इसके खानदान के साथ, ना बाप ना बेटे ना रूह के नाम से मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो, मुकद्दसी हो। और मैं आपके आगे एक गुजारिश, एक दरखास्त हर सरमन के बाद, हर इबादत के बाद रखता हूँ। बहुत ज्यादा खानदान है प्रेस सेंटर को, मैं आप लोगों के लिए दिन रात रो रो के दुआएं करता हूँ, और मैं खुदा रूह कुछ के आगे मिन्नत करता हूँ कि वो आपके ज़हनों और दिलों को नरम करे। प्रेस सेंटर के लिए आप अपने कीमती हदियाजात जो है मेरे इसी नंबर पर, जिस पर आप दुआ करवाते हैं, इसमें जैज अकाउंट बना है, आप भेज सकते हैं, ताकि खुदावंद के घर की तमीर का काम शुरू हो सके। आप सब जितनी दुनिया मेरे साथ जुड़ी हुई है, अब तक तो प्रेस सेंटर बन जाना चाहिए, पर किसी का दिल नरम नहीं होता। हर कोई मुझे कॉल करता है अपनी बीमारियों के लिए, हर कोई मुझे कॉल करता है बदरूहों से लड़ाने के लिए, पर आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि पास्टर साहब को हमारे लिए जो दिन रात ये बंदा इल्तिजाए एक एक बंदे के आगे हाथ जोड़ता है कि मैं आपके लिए प्रेस सेंटर बनाना चाहता हूँ, वो मैंने उठाकर कहीं ले नहीं जाना, वो आपकी नस्लों ने उसमें बैठ के इबादत कर दी है। सो मैं आपके आगे गुजारिश करता हूँ, शिफा लेने वाले लोग ना बने, ईमानदार लोग बने, ताकि हम मिलकर खुदावंद के घर का काम मुकम्मल कर सकें। मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। परसों शाम मंगल वाले दिन शाम 6 बजे हम ऑनलाइन होंगे। जितने भी बीमार हैं, जितने भी बदरूद बिफ्ता है, जितनी भी बेटियां बांझ हैं, जितने भी दुखों मुसीबतों में है, वो अपने पास पानी और तेल पहले ही रख लीजिएगा, और खुदावंद अपने ही नाम यीशु मसीह के नाम की खातिर आपको शिफा दे। मसीह हमेशा आपको संभाल कर महफूज। आमीन।